بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر عابدہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر 16 جو کہ صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے اس کو پڑھیں گے۔ موئنجو دڑو، سندھ کی قدیم تہذیب۔ سبق نمبر 16 موئنجو دڑو۔ بچے، سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے سوال جواب اور الفاظ معنی وغیرہ کی طرف جائیں گے۔ دنیا میں ہزاروں سال پہلے بھی بہت سے شہر آباد تھے۔ ان میں سے کئی شہر قدرتی آفات کے باعث تباہ ہو گئے اور زمین کے نیچے دب گئے۔ انسان نے جب ان کا کھوج لگایا تو اسے ان قدیم شہروں کے کھنڈر ملے۔ ایسے کئی شہروں کے کھنڈر پاکستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے ایک موئنجو دڑو ہے۔ موئنجو دڑو کے کھنڈر لاڑکانہ شہر سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ سندھی زبان میں موئنجو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ یہاں پر ابتدا میں ایک ٹیلا تھا جس پر کچھ انسانی ہڈیاں ملی تھیں۔ بعد میں جب اس ٹیلے کی کھدائی کی گئی تو اس کے نیچے سے ایک مکمل شہر دریافت ہوا جو وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس طرح اس قدیم شہر کا نام موئنجو دڑو پڑ گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر قریباً 5000 سال پہلے آباد ہوا تھا اور 1000 سال تک قائم رہا تھا۔ سن 1922 میں اس کی کھدائی کی گئی تو اس کے نیچے سے اس شہر کے واضح آثار نکلے، جن سے اس دور کی تہذیب کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے اور ہم ان لوگوں کے طرز زندگی، عادات و خصائل اور مشاغل کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 99 پہ اس شہر کے کھنڈرات سے جو چیزیں ملی ہیں ان میں بچوں کے کھلونے، مٹی کی بنی ہوئی بیل گاڑیاں، عورتوں کے زیورات، کنگھیاں اور ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں، مٹی، چینی کے بنے ہوئے برتن، سیپ اور گھنگے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تانبے اور کانسی کے بنے ہوئے اوزار اور مجسمے بھی ملے ہیں۔ ان آثار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے باشندے انتہائی ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے پختہ اینٹوں کے وسیع خوبصورت 2 منزلہ مکانات بنائے تھے۔ پانی کے لیے گھروں میں کنویں کھودے تھے۔ ہر گھر میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ غسل خانوں کا انتظام تھا۔ مکانوں کو روشن اور ہوادار بنانے کے لیے کمروں میں روشن دان رکھے جاتے تھے۔ اس شہر کی سڑکیں 35 فٹ سے زیادہ کشادہ تھیں۔ گھروں کے علاوہ چوراہوں پر بھی کنویں موجود تھے۔ پانی کی نکاسی کے لیے سڑکوں کے دونوں جانب ڈھکی ہوئی نالیاں تھیں۔ مکانات، گلیاں اور سڑکیں باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائی گئی تھیں۔ اس شہر کے وسط میں ایک بڑا ہال تھا۔ اس کے ستون دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت کا اسمبلی ہال ہوتا ہوگا۔ انتظامیہ اور مزدوروں کے لیے الگ الگ قیام گاہیں تھیں۔ ہر جگہ صفائی کا خاص اہتمام تھا۔ اس ترقی یافتہ شہری نظام کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا ہے کہ موئنجو دڑو اس وقت وادی سندھ کا دارالحکومت تھا۔ آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ کچھ لوگ صنعت اور تجارت سے بھی وابستہ تھے۔ اشیاء کی ناپ تول اور پیمائش کا باقاعدہ نظام تھا۔ علاوہ ازیں لوگ شوق سے شکار کرتے تھے۔ بھیڑ، بکریوں، گائے اور بیلوں کے ریوڑ پالے جاتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ اچھے کاریگر بھی تھے۔ یہ لوگ آرٹ میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ مجسمے، برتنوں پر بنے بیل بوٹے
और नक्शो निगार और मोहरों पर मुख्तलिफ शक्लें इसका वाज़ेह सबूत हैं। उन्होंने तांबे और कांसी के जो बर्तन बनाए हैं वो उनके आला ज़ौक़ और महारत का सबूत पेश करते हैं। वो ज़ेवरात भी बहुत अच्छे बनाते थे। वो हिंसों का इस्तेमाल जानते थे। उन्होंने अपना रस्मुल ख़त इजाद कर रखा था जो इशारात और तस्वीरों पर मुश्तमिल था। सफ़ा नंबर 100 पे है। इस रस्मुल ख़त को माहिरीन अभी तक पढ़ नहीं पाए। मोइंजोदड़ो के लोग फ़ने तहरीर से भी आगाह थे। मोइंजोदड़ो के आसार से बहुत कम हथियार मिले हैं। तांबे और कांसी के ये हथियार ज्यादा मजबूत भी नहीं हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये लोग पुरअमन जिंदगी गुजारते थे और लड़ाई झगड़े से परहेज करते थे। इस शहर के हाकिम बड़ी फौजें नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने शहर की हिफाजत करनी थी, किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा नहीं करना था। मोइंजोदड़ो का ये शहर कैसे खत्म हुआ, इस बारे में तारीखदान और माहिरीन आसार कदीमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ माहिरीन के ख्याल में कुदरती आफात मसलन जलजला या सैलाब वगैरह की वजह से ये शहर तबाह हुआ। कुछ माहिरीन के ख्याल में वबाई अमराज के नतीजे में सारी आबादी खत्म हो गई। एक नजरिए के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि बैरूनी हमला आवरों ने इन पर गलबा पा लिया हो। बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई तो हो गई। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं मोइंजोदड़ो के बारे में समझाती हूँ। 5000 साल पुराना ये शहर जो तकरीबन 1000 साल तक कायम रहा। नाम मोइंजोदड़ो सिंधी जबान का लफ्ज जिसके मायने है मुर्दों का टीला। इब्तिदा में एक टीला था जिस पर कुछ इंसानी हड्डियां मिली थी। बाद में जब इस टीले की खुदाई की गई तो इसके नीचे से एक मुकम्मल शहर दरियाफ्त हुआ जो काफी रकबे पर फैला हुआ था। इस तरह इस कदीम शहर का नाम मोइंजोदड़ो पड़ गया। अच्छा बच्चे, अब यूं है कि इसमें मोइंजोदड़ो में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ये तो इसे इनकी तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इनकी तर्ज जिंदगी का, इनकी रिहाइश गाहों का एक इस तरह इन्होंने पूरी मंसूबा बंदी के साथ ये शहर तामीर किया था। पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल हुआ था इसमें, बड़े बड़े कुशादा कमरे, गुसल खानों का इंतजाम। ये सोचें कि उस जमाने में भी इन लोगों ने गुसल खानों का इंतजाम रखा था जो कि मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बनाए जाते थे। और साफ पानी के लिए ये लोग जो है घरों में भी कुएं रखते थे और घरों से बाहर चौराहों पर भी कुएं मौजूद होते थे। इस तरह कुशादा गलियां होती थी इनकी। निकासी का बेहतरीन इंतजाम था इनका। बर्तन वगैरह इन्होंने, ये लोग बर्तनों पर भी नक्शो निगार बनाते थे। मोहरों पर नक्शो निगार इनके बने होते थे। मुजस्मों पर भी इनके नक्शो निगार बने होते थे। मोहर का इस्तेमाल ये करते थे। ख़वातीन के ज़ेवरात जो वो पहनती थी वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो मुजस्मे होते थे ये तांबे और कांसी के जो है बने होते थे। औजार भी ये लोग तांबे और कांसी के ही बनाते थे। काफी ज़हीन लोग थे, अपनी जिंदगी को हर तरह से आरामदेह बनाने की काविशों में ये लगे होते थे। खेती बाड़ी इनका पेशा था। और इसके अलावा इनका अपना रस्मुल खत था बच्चे, जिसका इनका अपना इजाद करदा रस्मुल खत था जो इशारात और तस्वीरों पर मुश्तमिल था। इस रस्मुल खत को अभी तक माहिरीन जो है वो पढ़ नहीं पाए। इसके अलावा इनके खात्मे के मुतल्लिक भी तारीखदान और माहिरीन आसार कदीमा के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ माहिरीन के ख्याल में कुदरती आफात, जलजले या सैलाब उनके खात्मे की वजह बने। कुछ माहिरीन के ख्याल में वबाई अमराज खात्मे की वजह बने और कुछ के मुताबिक बैरूनी हमलावरों ने इन पर गलबा पा लिया था। यानी इनके खात्मे के बारे में अभी तक मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये लोग उस जमाने में भी मोहरों का इस्तेमाल
किया करते थे। इस तरह बच्चे छोटी छोटी सी बातों में आपको अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म के लोग थे और किस किस्म का रहना ये पसंद करते थे, किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को खूबसूरत और आरामदेह बनाया था। 2 मंजिला मकानात इनके पास होते थे। हर तरह की सहूलत इन्होंने खुद को दी हुई थी। यानी उस वक्त का एक जदीद शहर था ये मोइंजोदड़ो जो है, और एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं। इनके आला ज़ौक़ और महारत का सबूत इनकी हर बात से मिल रहा होता था, हर बात से मिल रहा है। अच्छा बच्चे, मैं यूं करती हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिप जो है तस्वीरों की सूरत में करा देती हूँ मोइंजोदड़ो का। आप लोग देखते जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ट्रिप जो है पसंद आएगा और इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा जो है मोइंजोदड़ो के बारे में हो जाएगा। चलें तो देखते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इसकी, कि किस तरह यहाँ के मकानात होते थे, किस तरह यहाँ के कमरे और ये गलियां, कुएं, जेवरात, मोहरें और मुजस्मे और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा बच्चे, तो अब हम चलते हैं अल्फाज मायने की तरफ। अल्फाज के मायने है कदीम, पुराना, मंसूबा, तदबीर, आसार, अलामात, खंडर, वीरान जगह, वसी व अरीज, दूर तक फैला हुआ, तर्ज जिंदगी, जिंदगी गुजारने का तरीका। अब अल्फाज जुमले। बच्चे, फिर हम वही बात यहाँ पे मैं दोहराऊंगी कि जुमले यहाँ पे बना के तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अल्फाज को खुद समझ के उनके आपने खुद भी जुमले बनाने हैं अपने अल्फाज में, बमानी जुमले। तो सबसे पहला जुमला जो है कि कदीम, मोइंजोदड़ो की तारीख बहुत कदीम है। मंसूबा, मोइंजोदड़ो के लोग बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत अपनी जिंदगी गुजारते थे। आसार, आज बादल बरसने के आसार हैं। खंडर, कई कदीम शहरों के खंडर पाकिस्तान में पाए गए। वसी व अरीज, मोइंजोदड़ो का शहर वसी व अरीज रकबे पर फैला हुआ है। तर्ज जिंदगी, इस्लाम ने हमें बेहतरीन तर्ज जिंदगी के उसूल बताए हैं। ये अल्फाज जुमले हो गए आपके। अब बच्चे यहाँ पे सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करें। मोइंजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। मोइंजोदड़ो उस वक्त वादी सिंध का दारुल हुकूमत था।
पानी के लिए घरों में कुएं खोदे जाते थे। मोहनजोदड़ो का शहर 5000 साल पहले आबाद था। इस शहर की सड़कें 35 फुट से ज्यादा कुशादा थीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इससे बचे अल्फाज पे नुक्ते लगाने हैं, तो नुक्ते मैंने लगा के दे दिए, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। पहला लफ्ज है ज़हीन, और फिर कदीम, खबरें, खंडर और मंसूबा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चे ये सवाल है आपके पास कि दिए गए फिलहाल के जुमलों को फेल माजी और फेल मुस्तकबिल में तब्दील करें। तो सबसे पहले तो इसके लिए फेल और फेल की अकसाम को समझना जो है वो जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखें, फेल जो है ज़ाहिर है वो आपको पता ही है कि काम को कहते हैं, कि कोई काम भी जो हो रहा होता है वो फेल कहलाता है। अब इसकी अकसाम क्या है बलिहाज ज़माना, ज़माने के लिहाज से इसकी अकसाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। तो सबसे पहले बच्चे हम फेल माजी को समझते हैं कि फेल माजी क्या है। ये वो जमाना है जो गुजर चुका हो, वो सारे काम जो हम गुजरे हुए जमाने में कर चुके हों वो फेल माजी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे, कल अहमद स्कूल नहीं गया था, ज़ारा ने आम खाया, हम दावत में गए थे। इन सब मिसालों में बच्चे जितने काम हैं वो खत्म हो चुके हैं, वो हम कर चुके हैं, यानी वो वक्त जो है वो गुजर चुका है। ज़ारा जो है वो आम खा चुकी है, अहमद जो है वो स्कूल नहीं गया था, और हम दावत में भी जा चुके हैं। तो इसलिए यानी वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हो चुके हों वो फेल माजी कहलाते हैं। यानी हमारा गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ जमाना फेल माजी। अब हम जो है फेल हाल की बात करें, तो वो काम जो हो रहा होता है, मौजूदा जमाना, यानी जो काम हो रहा है फेल हाल कहलाता है। यानी वो फेल जो मौजूदा जमाने में किसी काम का करना जाहिर करे, यानी अभी जो काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे, अहमद स्कूल जा रहा है, ज़ारा आम खा रही है, और हम दावत में जा रहे हैं। इन मिसालों में सारे काम मौजूदा जमाने में हो रहे हैं। अहमद रोजाना स्कूल जाता है, या हम अभी दावत में जा रहे हैं, ज़ारा आम खा रही है, ये सारा कुछ हो रहा है और हमने उसको फेल हाल का नाम दिया। अब है फेल मुस्तकबिल, यानी इसका तीसरा हिस्सा। तो जो काम होने वाला हो, यानी वो अभी तक हुआ नहीं, वो होने वाला है, वो फेल मुस्तकबिल कहलाता है। जो आने वाले जमाने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे। मिसाल के तौर पे, अहमद स्कूल जाएगा, ज़ारा आम खाएगी, हम दावत में जाएंगे। तो गा गे गी जो है ये इसकी निशानी है कि ये काम जो है आने वाले वक्त में होगा। तो ये हमारा फेल मुस्तकबिल हुआ। अब हम उस सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में आप देखें, हमारे पास जो हमारी किताब में सवाल मौजूद है उसके मुताबिक हमने फेल हाल को फेल माजी और फेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। ठीक है बच्चे, अभी जैसे हमने पीछे समझा फेल हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों को, तो अब यहाँ पे हमने फेल हाल को फेल माजी और मुस्तकबिल में तब्दील करना है। तो मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता था, या मैंने खाना खाया। मैं खाना खाऊंगा, मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल। अब फेल हाल में दूसरा जुमला हमारे पास है, मैं काम करता हूँ। फेल माजी में हम कहेंगे मैं काम करता था,
میں نے کام کیا، اور فعل مستقبل میں ہم کہیں گے میں کام کروں گا۔ فعل حال میں تیسرا جملہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اوس کے قطرے گرتے ہیں۔ فعل ماضی، اوس کے قطرے گرتے تھے، اوس کے قطرے گرے۔ فعل مستقبل میں اوس کے قطرے گریں گے۔ فعل حال، میں چائے پیتی ہوں، میں چائے پیتی تھی، میں نے چائے پی۔ اور فعل مستقبل، میں چائے پیوں گی۔ پہلے اس سبق کے بچے آپ لوگوں نے ریڈنگ بار بار کرنی ہے، پھر ان کے مشکل الفاظ کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا سمجھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ الفاظ، معنی، جملے، دیگر سوالات وغیرہ جتنے بھی سمجھائے گئے ہیں اس سبق کے دوران، ان سب کو سمجھنا ہے، غور سے دیکھنا سمجھنا، اور کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔